हरे कृष्णा। आज का मेरा टॉपिक है बॉडी एंड द सोल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वी विल चैंट सम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। Dehina of the embodied, asmin in this, yatha as dehe in the body, kaumaram boyhood, yauvanam youth, jara old age, tatha similarly, dehantara transference of the body, praptihi achievement, dhiraha the sober, tatra thereupon, na never, muhyati deluded. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self realized soul is not bewildered by such a change. Purport by Srila Prabhupada. Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have either spiritual bodies in the next life or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause of lamentation. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, supersoul, and nature, both material and spiritual, is called Dhira, or most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme soul being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the supreme exist eternally, sanatana, and are called shara. That is, they have tendency to fall down into material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same fragmental. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as Paramatma, who is different from the individual living entity. When the sky is reflected in the water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the supreme soul is the personality of Godhead Shri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the 4th chapter. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjuna, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other the instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya,
No one can be authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity, Arjuna, who is forgotten soul deluded by Maya. ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इससे पहले वाले वर्ष में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं रहा, कोई टाइम नहीं रहा जब तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूँ या जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं वे ना रहे हों। मतलब हम पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे। लेकिन अर्जुन की जो दृष्टि थी वो थोड़ी सी भौतिकवादी हो गई थी, और भौतिकवादी होने के कारण वो आत्मा और जो शरीर है, बॉडी है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। इसलिए इस वाले श्लोक के अंदर, इस वाले वर्स के अंदर श्री कृष्णा आत्मा और बॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारी जो आँखें हैं वो इम्परफेक्ट हैं, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं, बस जो रिसेप्टर रिसीव कर सकते हैं हम वही देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायरस को नहीं देख सकते, बैक्टीरियाज को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास वो रिसेप्टर नहीं है। इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। हम जितने भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, जितना ब्रह्मांड है, उसको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमारी जो आँखें हैं वो इम्परफेक्ट हैं, और इम्परफेक्ट सेंसेस से हम आत्मा को नहीं देख सकते। हमें इस चीज़ का प्राइड नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ देखी हुई बातों पर ही विश्वास करेंगे। हमारे पास हमारे जो आसपास प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, परंतु वे उपस्थित हैं, वो प्रेजेंट हैं। उनके जो अस्तित्व को आप एक तरह से झुटला नहीं सकते। आज की जो साइंस जब बढ़ रही है तो हम देख भी रहे हैं, नित्य सर्वगत है स्थाणु, मतलब वो सब जगह विद्यमान है आत्मा, और सब जगह विद्यमान है। और जी श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है। और आज की साइंस को अगर हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जीव जंतु, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स सब जगह फैले हुए हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वे ना रहे हों। इसलिए आत्मा को देखने के लिए हमारी जो आँखें हैं वो इम्परफेक्ट हैं। हम सिर्फ पंच भौतिक जो तत्व हैं, जिसमें अग्नि है, आकाश है, वायु है, धरती है, जल है, इसी को महसूस कर सकते हैं, और इसी से हमारा शरीर भी बना है। तो जैसे हमारे पास रिसेप्टर हैं, हम वही चीज़ रिसीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ईगल के पास जो रिसेप्टर्स हैं वो इतनी ऊंचाई से भी एकदम क्लियर कट अपने जो है शिकार को देख लेती है। वैसे ही हमारे पास वो रिसेप्टर्स नहीं हैं जो हम जिसको आत्मा को देख सकें। अगर हमें इतनी ऊंचाई से देखेंगे तो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास वो रिसेप्टर्स नहीं है। इसलिए इस विज्ञान को समझने के लिए, भगवद गीता के विज्ञान को समझने के लिए, हमें अपनी आँखों पे प्राइड न करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए जो मैं आँखों से देखूंगा बस वही सत्य है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं देख सकते, इसलिए हमें आँखों से विश्वास हटाकर हमारे को सुनने पे देना पड़ेगा। इस जो ज्ञान है, श्रुति, हम देखते हैं श्रुति का मतलब होता है सुनना। भगवद गीता में श्री कृष्ण भी बोलते हैं, हमारे वेदों में भी लिखा है कि तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत् शमित प्राणी श्रोत्रम। श्रोत्यम मतलब सुनने से, हियरिंग से। अगर हम कृष्णा से सुन रहे हैं, कृष्णा की परंपरा से आ रहे किसी प्रमाणिक गुरु के मुख से सुन रहे हैं, तभी हम इस ज्ञान को पा सकते हैं, इस नॉलेज को पा सकते हैं। अन्यथा इस नॉलेज को पाना बहुत कठिन है। अगर हम अपने आँखों से या एक्सपेरिमेंटल पे ज़्यादा इस चीज़ को समझने पे कोशिश करेंगे, एक्सपेरिमेंट, आप कितने एक्सपेरिमेंट कर ले, अरबों खरबों करके गॉड पार्टिकल ढूंढने का प्रयास कर लें, वो सारे वेस्टेज ऑफ मनी होता है। बल्कि उस पैसों से अगर हम यदि किसी गरीब के लिए या फिर किसी भी ऐसे देशों की मदद करें जहाँ पे गरीबी है, तो इस संसार में से गरीबी हट जाएगी, भूख प्यास मिट जाएगी। लेकिन हम इतनी अरबों खरबों करके सिर्फ गॉड पार्टिकल ढूंढने पे मेहनत लगा देते हैं। इतनी टाइम का वेस्टेज होता है, इतनी मैनुअल एनर्जी का वेस्टेज होता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तक हम गॉड को तब तक नहीं देख सकते जब तक स्वयं गॉड ना चाहें। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं देख सकते इस मोटी आँखों से। इसलिए हमारे वेदों में लिखा है तद विज्ञानम, विज्ञान है। विज्ञान का मतलब साइंस। ज्ञान और विज्ञान दो चीज़ें होती है। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और विज्ञान का मतलब होता है उस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
तो हम जब इस नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं उसी को विज्ञान बोलते हैं। और जो भक्ति है वो टोटली विज्ञान है। आपको इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना भी है। हम जब इसको उतारते हैं तो उसी को विज्ञान बोलते हैं। और वो विज्ञान कैसे आता है? जब हम श्री गुरु की मुख से सुनते हैं, किसी प्रमाणिक गुरु के मुख से ये सारा विज्ञान सुनते हैं, तभी हमें समझ में आता है वास्तव में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जैसे यहाँ पे जो अर्जुन है थोड़ी देर के लिए मोहित हो गया था, आत्मा से और परमात्मा के विज्ञान को भूल चुका था, उसकी जो दृष्टि है पूर्ण रूप से भौतिकवादी हो गई थी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे जो श्री कृष्ण हैं, जो अर्जुन देख सकता था, उसी के थ्रू उसको डिफ्रेंशिएट करना बता रहे हैं। जैसे हम अभी अपनी आंखों से सिर्फ पंचभूत देख सकते हैं, तो इन पंचभूत का जो शरीर है इसको देख सकते हैं। तो इस शरीर से होते हुए हम आत्मा को पहचानने का प्रोसेस कर रहे हैं, एनालिटिकल प्रोसेस बोलते हैं इसको। धीरे धीरे करके हम शरीर और आत्मा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब देहिनो अस्मिन् यथा देहे, मतलब जो आत्मा है ऐसा नहीं है कि शरीर ही सब कुछ है। इस देहिनो अस्मिन मतलब ये जो देही है जिसने देह को धारण कर रखा है वो ही इस देह में निवास करती है। और भगवत गीता में बताया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इसलिए जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो भी इस हृदय में रहते हैं और आत्मा भी इस हृदय में रहती है। आत्मा के लिए बोला गया है समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, मतलब इस समान जो वृक्ष है, हृदय है, इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल श्री कृष्ण दे रहे हैं, कौमारम यौवनम जरा। अगर हम खुद देखें कि कौमार अवस्था से जरा अवस्था तक किस तरह हमारा शरीर बदल रहा है। आज साइंस भी हमें बताती है कि हर दिन बिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं वो चेंज होते हैं। हर दिन हर प्रकार के सेल्स जो हैं वो सब हमारी बॉडी में चेंज होते रहते हैं। इसलिए जो ये आत्मा है वो इस शरीर में रह रही है। और कौन से शरीर में रह रही है? जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है ऐसे शरीर में ये आत्मा रह रही है। और आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है, ये नहीं बदलती है। इसलिए हम खुद देखेंगे हमारी बचपन की फ़ोटो, अभी की फ़ोटो, या फिर हम बूढ़े हो गए तो हमारी सारी फ़ोटो हम देखेंगे कि हमारा पूरा शरीर बदल चुका है, लेकिन हम वही महसूस करते हैं कि आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसा बचपन में था। हमारा शरीर बदल गया है लेकिन आत्मा सेम रहती है। आप किसी बूढ़े को पूछेंगे कि आप क्या जवान हैं, तो अंदर से उसको रहता है एनर्जेटिक रहने का, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि आत्मा एनर्जेटिक है, आत्मा अजर है, अमर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। तो आत्मा जवान है और शरीर इस तरह साथ नहीं देता है, तो उसके बाद क्या होता है? तथा देहांतर प्राप्ति। तो मृत्यु के बाद हमें पुनः से उस आत्मा को एक ऐसा शरीर मिलता है जो उसको कर्मों के अनुसार, मतलब क्या होता है कि मृत्यु के समय ये जो शरीर है, जिस प्रकार ये कुमार अवस्था से यौवन अवस्था से जरावस्था में परिवर्तित हो रहा है, ऐसे ही मृत्यु के समय आत्मा जो है अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और नया शरीर जब वो पाती है तो पुराना से दोबारा से वही एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो साइंस है, ये विज्ञान है, सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान है तो वो बचपन से बूढ़ा नहीं हो रहा है, जवान नहीं हो रहा। चाहे हिंदू है तो बचपन से बूढ़ा या जवान हो रहा, सब हो रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इसलिए भगवत गीता किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए नहीं है, ये प्योर साइंस है जो सब पर लागू होती है। चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी मत को मानने वाला हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो। जिस प्रकार जैसे कोविड है, कोविड वायरस जो है वो सबको इन्फेक्टेड करता है और उसकी दवाई भी सब पे असर करेगी। ये साइंस है, ये नहीं देखती कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इसलिए ये जो नॉलेज है प्योर साइंस है जो सब प्रकार के रिलीजन पर एक्ट करती है। चाहे व्यक्ति किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो, उसकी बॉडी परिवर्तित होगी और वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। और मृत्यु के प्राप्त होने का मतलब है तथा देहांतर प्राप्ति, उसके बाद उसको पुराना नया शरीर भी मिलेगा। जिस प्रकार इस शरीर में दोबारा चेंज हो रहा है, शरीर हर क्षण चेंज हो रहा है, उसको हर क्षण जो हमको एक नया शरीर मिलता जा रहा है, वैसे ही मृत्यु के समय भी हमें एक नया शरीर मिलता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भौतिक चीज़ों से हमें सूक्ष्म तत्वों की तरफ लेके जाते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे बोला है धीरस तत्र न मुह्यति, मतलब जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन से एक तरह से विचलित नहीं होता है। क्यों? धीर का मतलब होता है जिसके पास सोल की नॉलेज है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और इस मटेरियल वर्ल्ड का पूरा ज्ञान है। जिसको पूरा ज्ञान है वो धीर व्यक्ति होता है और धीर कभी भी विचलित नहीं होता है। तुलसीदास जी भी बोलते हैं, धीरज धर्म मीत और नारी आपतकाल परखिए चारी। जो धैर्य है वो हमें आपतकाल में परखना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो अर्जुन है, आपतकाल आया तो अपना धैर्य खो चुका था उस समय, तो और
इस आपातकाल में भी हमें जो धैर्य बनाए रखा है, जो श्री कृष्ण है वो धैर्य बनाए रखे, तो वास्तव में धीर वही है। इसका एक एग्जाम्पल हमें कालिदास जी से ही मिलता है। जब लॉर्ड शिवा एक बार मेडिटेट कर रहे थे तो वो निर्वस्त्र थे, तो वहाँ से पार्वती माता आती हैं और एक तरह से उनको एजिटेट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो एजिटेट नहीं होते। मतलब पूरा सूटेबल एनवायरनमेंट है सेक्सुअल इंडल्जेंस के लिए, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर रखा है, फिर भी वो उस चीज़ में इंडल्ज नहीं होते। वही वास्तव में धीर है। धीर व्यक्ति का एक एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर भी हैं। जो हरिदास ठाकुर थे वो 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो उनके पास इतना भी समय नहीं था कि एक उस समय क्या नवाबों का शासन था, मुसलमानों का शासन था। तो नवाब साहब को जब पता लगा कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम होकर और 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो उन्होंने रात्रि में एक तरह से उसको एक तरह से उनकी मेज गिराने के लिए एक वैश्य को उनके पास भेज दिया। और वो 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यस्त थे। तो वैश्या जब आई तो उन्होंने से पूछा आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बता दी। तो उन्होंने बोला आप थोड़ी देर विश्राम करिए, बस मैं अपने राउंड्स पूरे कर लूँ, अपने महामंत्र पूरे कर लूँ। तो वो करते रहे ऐसे पूरी रात से सुबह हो गई, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र जप ही करते रहे, मतलब एक क्षण भी खाली नहीं गया। तो वैश्या को जब सुबह हुई तो उन्होंने बोला आज मुझे समय नहीं मिला, आप कल दोबारा आइएगा। तो वैश्या जाती है, फिर पुनः अगली रात्रि को आती है। वही जो सीन दोबारा से चलता है, वो वहीं पे बैठी रहती है और हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, पूर्णतः तल्लीन रहते हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करके 2-4 दिन जब बीतते हैं तो एक तो शुद्ध भक्त भगवान के और उनके मुख से हरे कृष्ण नाम का जप सुनते 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 जो वैश्य है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो अंत में जाके हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरती है और उनसे क्षमा मांगती है और सारा इंसिडेंट बताती है कि उन्होंने उनको भेजा था। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अब तुम शुद्ध हो गई हो, यहाँ तुलसा जी का पौधा है, तुम सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और तुलसा जी की परिक्रमा किया करो। तो ये भी एक धीर व्यक्ति है। धीर व्यक्ति का मतलब ये होता है कि हमारे पास कॉज ऑफ प्रोवोकेशंस पूरे पड़े हुए हैं, हर कोई अपने को उत्तेजित करना चाह रहा है, लेकिन हम फिर भी धैर्य बनाए रखें आपातकाल में। ये नहीं कि हम आराम से बैठे हुए हैं, कोई काल नहीं और बोल रहे हैं कि हम धीर हम शांति ना। अगर विपरीत परिस्थितियाँ आई, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, उसमें भी हम अपना धैर्य अगर बनाए रखते हैं तो वास्तव में वही धैर्यशील व्यक्ति होता है। तो ये 2 उदाहरण हरिदास ठाकुर का और लॉर्ड शिवा का हमें बताते हैं कि धीर व्यक्ति कैसा होता है। धीर व्यक्ति वही होता है जो प्रतिकूल वातावरण में भी अपना धैर्य बनाए रखे। ऐसा नहीं हम एसी के अंदर बैठे हुए हैं और अपने आप को धीर समझें। जब हमें प्रतिकूलता आती है हमारे जीवन के अंदर, तब भी हम अपना धैर्य बना रखें, तो ही हम वास्तविक धीर कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पे तुलसीदास जी धर्म के बारे में भी बताते हैं। धर्म भी वही है जो प्रतिकूल अवस्था में ना त्यागा जाए। ऐसा नहीं जब तक सब कुछ सही चल रहा है तो पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसी थोड़ी प्रतिकूलता आई, क्या भगवान कौन भगवान, इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी समस्या आ रही हैं, तब त्याग दो। वो वास्तव में धर्म नहीं होता है। कलयुग का जो युग धर्म है वो हरे नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। और इस धर्म का भी एक एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर से ही हम समझ सकते हैं। जो हरिदास ठाकुर थे, जब उन्होंने अब मुस्लिम से वो हिंदू में कन्वर्ट हो गए थे और हरे कृष्ण, हिंदू भी क्या बोले, वैष्णव, परम वैष्णव बन गए थे। हिंदू में भी सबसे जो उच्च पोजीशन है वो उसको प्राप्त हो गए थे और 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो नवाब साहब को इससे एक तरह से परेशानी होने लगी। उनको लगा ये मुस्लिम जो है ये हिंदुओं के प्रचार में लग गया है और हिंदुओं के जो कार्य कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपने राज में बुलाया और जब उनको बोला कि तुम अपने इस धर्म को त्याग दो, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस धर्म को नहीं त्यागा। हर हाल में उन्होंने अपने धर्म को पकड़े रखा। और फिर उस जो नवाब साहब थे उन्होंने दंड के रूप में उनको 22 मार्केट में चाबुकों से पिटवाया था और इतना पिटवाया था कि वो एक तरह से मरणशील हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुख से एक क्षण के लिए भी हरि नाम को नहीं त्यागा। उन्होंने नवाब साहब को यही बोला, चले मेरे शरीर का रोम रोम कट जाए, अंग अंग कट के अलग हो जाए, फिर भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जप को नहीं त्यागूंगा। तो यही धर्म है। युग धर्म भी हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हम ये ना सोचें कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान चलेगी, बल्कि प्रतिकूलताएं बढ़ती चली जाएंगी। और वो प्रतिकूलता एक तरह से परमेश्वर का आशीर्वाद होती हैं जो हमें शरीर से अलग कर देती हैं और परमेश्वर से जोड़ देती हैं। तो जब हरिदास ठाकुर मरणशील हो गए तो उन्होंने उनको गंगा में बहा दिया और गंगा में जैसे ही वो पड़े तो एकदम से उनके जो रिजुवनेट हो गए, फ्रेश दोबारा से एक तरह से प्राण आ गए। और फिर वो बहते 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 करके अपनी एक तरह से कुटीर में चले गए एक, और वहीं पे जाके उन्होंने फिर आगे अपना जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कंटिन्यू रखा। जब नवाब साहब को ये बात पता लगी
तब वो एक तरह से नतमस्तक हो गए हरिदास ठाकुर के सामने और उनके चरणों को एक तरह से उनसे क्षमा मांगी और हरिदास ठाकुर ने फिर अपनी भक्ति शुरू करी। तो आप ये ना सोचें कि हरि कृष्णा महामंत्र जप करेंगे तो स्मूथ लाइफ चलेगी। तो प्रतिकूलता में भी अपने धर्म को अपनाए रखना, युग धर्म को अपनाए रखना। हर युग का एक पर्टिकुलर धर्म होता है, उस धर्म के अनुसार भगवत प्राप्ति की जा सकती है। हमारे वेदों में लिखा है, कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेता यद यजतो मखी द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनम। मतलब जब सतयुग था तो वहाँ पे ध्यान का जो प्रोसेस था जिस कारण भगवत प्राप्ति होती थी। दूसरा त्रेता युग था जिसके अंदर जो यज्ञ किए जाते थे, शुद्ध था, वातावरण शुद्ध था और ब्राह्मण भी ऐसे होते थे तो शुद्ध होते थे और सामग्रियाँ भी शुद्ध मिलती थी। तो आज के कलयुग के अंदर ना तो वो ब्राह्मण रहें, सामग्री मिलावट हर जगह पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम यज्ञ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये यज्ञ था वो था अपने त्रेता युग के लिए। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के लिए मूर्ति पूजा थी, ताकि मूर्ति पूजा में बहुत सारे नियम कानून होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, शुचिता का ध्यान रखना पड़ता है, एक तरह से टाइम और टेबल के अनुसार से कंटिन्यू चलना पड़ता है। तो वो द्वापर युग के लिए था। कलौ तद हरि कीर्तनम। इस कलयुग में धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही एक रास्ता है इस कलयुग के लिए। तो ये युग धर्म है और इस युग धर्म को हरिदास ठाकुर ने एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। चाहे शरीर कट के अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी युग धर्म को एक क्षण के लिए नहीं त्यागेंगे। तीसरा है मित्रता। मित्रता ऐसे नहीं जब आपके पास वातावरण अच्छा होगा, आप किसी अच्छे पोस्ट होंगे तो आपके मित्र इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास प्रतिकूलता आएंगी, धन का अभाव हो जाएगा, तो सारे मित्र आपको त्याग के चले जाएंगे। तो वास्तविक जो मित्र हैं वो श्री कृष्ण ही हैं और श्री कृष्ण की मित्रता का कोई भी एक तरह से कंपैरिजन नहीं है किसी भी व्यक्ति से। इसलिए भगवद गीता में सुहृदम सर्वभूतानाम, और सिर्फ वो एक व्यक्ति के नहीं है, सर्वभूतों के लिए, चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने भी जीव हैं, देवताओं तक, सबके पालन करता है और सबके शुभ चिंतक हैं। तो श्री कृष्ण से बड़ा मित्र इस जगत में कोई भी नहीं है। जब आपके सामने संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, जब हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, पूरा जगत आपके विपरीत खड़ा होगा, जब परिवार के रिश्ते नाते कोई आपका साथ नहीं देगा, ना आपकी विद्या भी हो सकता है जो सांसारिक विद्या है वो आपका साथ ना दे किसी भी प्रकार से, उस क्षण श्री कृष्ण आपके साथ सदैव खड़े रहते हैं। और ऐसी मित्रता को त्याग कर अगर हम जगत की तरफ अपना मुख करें तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। एक तरह से मित्र की एक तरह से अपमान है। जो सबसे बड़ा हमारा जो मित्र है उसका अपमान है। चाहे जगत छूट जाए लेकिन हमारी मित्रता जो है श्री कृष्ण से वो नहीं टूटेगी। चाहे प्राण निकल जाएं लेकिन हमारी मित्रता जो श्री कृष्ण से कभी नहीं टूटेगी। तो श्री कृष्ण से बढ़कर जो मित्र है कोई नहीं है। तो मित्र तो वही होते हैं जो आपातकाल में भी साथ रहते हैं, और इस संसार में ऐसे मित्रों का उदाहरण जो है बहुत कम मिलता है, और श्री कृष्ण से बड़ा मित्र कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए हमें श्री कृष्ण की तरफ मुख करना चाहिए बनस्पत इस जगत में मित्र खोजने के लिए। चौथा है नारी। जो नारी है, जो स्त्री है, उसका दायित्व होता है, उसका धर्म होता है कि वो पति के साथ रहे, हमेशा पति व्रता रहे, सती रहे। तो इस कलयुग में ऐसी सतीत्व पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके हमारे पास्ट में, भारत की हिस्ट्री में दो मुख्य उदाहरण हैं, एक तो मंदोदरी और एक सीता मैया। सीता मैया को रावण उठा के ले गया था अपने साथ और हर तरह से सीता मैया को फोर्स करने की कोशिश करी, लेकिन रावण चाहे 10 शीश लेके आ जाए, चाहे असंख्य शीश लेके आ जाए और असंख्य शीशों से कुछ भी सोचे सीता मैया के बारे में, लेकिन सीता मैया के हृदय में से वो श्री राम को नहीं हटा पाया। सीता मैया के हृदय में उनकी पतिव्रता को नहीं हटा पाया, उनकी सतीत्व को एक तरह से चोट नहीं पहुंचा पाया। तो ये होती वास्तविक सती। और जब श्री राम को वनवास मिला तो सीता मैया ऐसे नहीं कि आप वन में चली जाइए, मैं महलों में आराम करूंगी, जहाँ आप हैं वही मेरा महल है। चाहे आप वन में जाएंगे तो मैं वन में आपके साथ जाऊंगी, चाहे आप नरक में जाएंगे तो नरक में भी आपके साथ जाऊंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल मंदोदरी है। मंदोदरी को साफ पता था कि एक सती के साथ खेल रहा है, और सती के साथ खेल रहा है इसका मतलब इसका पूरा कुल भविष्य में नाश होने वाला है, और जब कुल नाश हो जाएगा तो वो नरक के द्वार में जाएगा। मंदोदरी को ये सारी चीज़ें पता थी और वो रावण को समझाती भी रहती थी, लेकिन रावण का जो अहंकार, जो मद है, उसके दिमाग में ऐसा घुमा हुआ था कि वो मंदोदरी की जो अच्छी राय है, एक तरह अच्छी जो सलाह है, वो भी नहीं मानता था। तो मंदोदरी को साफ पता था इसको अगर मैं फॉलो करूँगी तो नर्क के द्वार जाऊँगी, लेकिन फिर भी वो पत्नी थी, वो पति था। तो इसलिए पत्नी होते कि उसका धर्म था कि पति को फॉलो करे, भले ही नर्क में जाएंगे लेकिन मैं उनको, मेरा धर्म है, मेरा सतीत्व है कि मैं उसको सदैव फॉलो करूँगी। इसलिए मंदोदरी को आज भी सतियों में गिना जाता है। तो धीरज, धर्म, मीत और नारी। तो यहाँ पे धीर व्यक्ति के बारे में बताया। धीर व्यक्ति जो अर्जुन है, तो जैसे आपातकाल आया तो उन्होंने अपना धैर्य खो दिया, लेकिन हमें क्या होता है, तथा देहांतर प्राप्ति,
जब मृत्यु हो रही है किसी की तो उसमें जो धीर व्यक्ति होता है वो एक तरह से विचलित नहीं होता। तो जब अर्जुन को पूर्ण ज्ञान पुनः हो जाता है, पूरा जो स्मृति आ जाती है, तब वो पुनः एक तरह से अपनी धीर अवस्था में लौट आता है। यहाँ पे जो एक तरह से मृत्यु के बारे में बताया कि मृत्यु के बाद जो है रीइंकार्नेशन होता है। रीइंकार्नेशन मतलब जो आत्मा है वो पुनः एक दूसरे शरीर में जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, याद रहता है उनको कौन क्या था कौन क्या नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर भी उनके साथ जाता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पुराने जन्म की कभी कभी जो यादें होती हैं वो सूक्ष्म जो शरीर है उसमें एनकोडेड होती हैं और धीरे धीरे करके उजागर किसी किसी में उजागर हो जाती है परमेश्वर की कृपा से। इसलिए आप कौन सा शरीर आप प्राप्त करेंगे वो निर्भर करता है कर्मणा देव नेत्रेणा, भगवान की जो है आपके कर्मों के अनुसार, और देव नेत्रेणा उनकी देख रेख में। ऐसा नहीं है कोई सा भी शरीर आपको दे दिया जाएगा, नहीं। आपने जैसे कर्म इस शरीर में करे हैं, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद करे हैं, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद करे हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर मिलेगा। इस संसार के अंदर इतने सारी बॉडियाँ, इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक, किसी का भी शरीर सेम नहीं है। क्यों? सबके कर्म अलग अलग हैं। ये कर्मों का विधान है। और वो किसके नेतृत्व में चलता है? वो चलता है देव नेत्रेणा, मतलब भगवान के नेतृत्व में चलता है। मतलब भगवान जो परमेश्वर हमारे जो हृदय में विद्यमान है वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और जैसे हम कर्म करते चले जाएंगे वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा, वैसा ही शरीर हमें अगले जन्म में मिलेगा। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपद्य थे, वैसे ही देह में मिल जाता है। अब स्त्रीम प्रविशति उदरम पुंसा रेत कणग्रह, मतलब जो हमारा जो स्पर्म्स होते हैं, सीमन होते हैं, उसमें वो आत्मा को डाला जाता है और आत्मा सीमन जब ओवम से फर्टिलाइज्ड होता है तो उसको देह प्राप्त होता है। तो ये पूरी साइंस हमारे वेदों में लिखी गई है। इसके आगे श्लोकों में ऐसे फर्टिलाइजेशन से लेकर और जैसे बर्थ होता है बेबी का, वो पूरा डिटेल में बताया गया है और एकदम सटीक है। जैसे 3 से 4 महीने में ह्यूमन बॉडी जो है पूरा अपना स्वरूप बदल लेती है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम में आगे श्लोकों में लिखा है कि 3 से 4 महीने के अंदर जो है मनुष्य का एक स्वरूप उसके एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है। तो आज तो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी है और उनके पास तो ना तो अल्ट्रासोनोग्राफी थी ना कुछ, लेकिन इससे भी बड़ी टेक्निक थी और वो टेक्निक के थ्रू वो सब कुछ जानते थे, सारी चीज़ जानते हैं। इसलिए बोला गया है वेदों को लिखने वाले को, व्यास देव जी को, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे, उनके नेत्र से कुछ भी नहीं छुपा था। इसलिए हमें वेदों की बातों को एज इट इज़ समझना चाहिए और एज इट इज़ वेदों को अपनाना भी चाहिए। तो आज का लाइव गीता मैसेज यही है कि हम ये शरीर नहीं, एक आत्मा है और आत्मा जो है इस शरीर को हर क्षण बदलती रहती है। तो जब तक आत्मा है तब तक ही शरीर में केमिकल रिएक्शंस होंगे। जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक जो थ्योरी है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बताती है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अब तक केमिकल कॉम्बिनेशन से कोई सी भी लाइफ उत्पन्न नहीं कर सकता। आप मनुष्य को तो छोड़ ही दीजिए, आप चींटी तक नहीं बना सकते इस केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो ये जो साइंस है, ये जो मनुष्य की जो साइंस है, एक तरह से इम्परफेक्ट है, एक थ्योरी है। थ्योरी मतलब होता है बस प्रैक्टिकल, जिसका एक तरह से कोई भी रिजल्ट नहीं है, अभी तक कोई भी प्रैक्टिकल इसका प्रूफ नहीं आया है। और हमारे वेदों में बताया गया है कि जो आत्मा है वो सदैव से वही है। तो आत्मा के कारण ये शरीर बनता है। जब तक ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा तब तक शरीर का बनना असंभव है। और इस यहाँ पे बताया गया है कि जो पुंसा रेतः, स्पर्म के अंदर ही आत्मा विद्यमान है। अब हम जानते हैं कि ओवम मोटाइल नहीं होता, स्पर्म मोटाइल होते हैं। तो स्पर्म के अंदर आत्मा के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए हमारे को ये साइंस को अपनाना चाहिए, वेदों को एज इट इज़ अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इनमें लिखी एक एक लाइन सटीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो है वो गीता का ज्ञान जो है सब के लिए है। ये एक साइंस है और साइंस सब पे लागू होती है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे मेडिकल साइंस जो है, कोई बीमार होता है जिसको वायरस कोविड भी हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कंट्री का हो, वायरस जब ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो बीमार होगा और ट्रीटमेंट भी सेम ही लेना पड़ेगा। वैसे ही हमारी जो भगवद गीता का ज्ञान है इसमें बताया गया है कौमारम यौवनम जरा, इसी ज्ञान को बताया गया है किस तरह एक जो है बच्चे से लेकर बूढ़ा होता है, बूढ़े से लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सब पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो वो मरेगा नहीं या बूढ़ा नहीं होगा या जवान नहीं होगा, उसकी भी बॉडी चेंज हो रही है। तो साइंस सब पे लागू होती है और एक ही तरीके से लागू होती है। इसलिए भगवद गीता प्योर साइंस है जो सारे रिलीजन, कास्ट, कंट्री और सारे विश्व पर एक प्रकार से सभी मनुष्यों पर लागू होती है। तीसरा, यहाँ पे डेथ के बारे में बताया गया है। हमारी साइंस के अनुसार डेथ की डेफिनेशन है कि जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स हैं जब वो अपना फंक्शन बंद कर दें, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स और लास्ट में चाहे वो ब्रेन हो। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो मृत्यु का कारण क्या है, आत्मा जब शरीर को त्यागती है।
ऐसा नहीं हम सीपीआर करते हैं तो सीपीआर के थ्रू हम हर व्यक्ति को, ये कोई भी डॉक्टर आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा कि सीपीआर से ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। तो सीपीआर के कारण व्यक्ति जीवित नहीं होता है। कर्मणा देव नेत्रेणा, मतलब कोई एक सुपर पावर है जो डिसाइड करती है कि अब इसको सो जाने का समय आ गया है। फिर चाहे आप कितना ही सीपीआर लगा लीजिए, फिर चाहे आप कितना भी वेंटिलेटर लगा लीजिए, वो व्यक्ति नहीं बचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रयास नहीं करना है, हम प्रयास करते चले जाते हैं, हमारे हाथ में प्रयास है। तो जो डॉक्टर है उसके कर्म और जो मरीज है उसके कर्म, दोनों के आपस में इंटरेक्ट होते हैं। तो जिसके कर्म हैवी पड़ते हैं तो वो उसके कारण से वो जीव या तो बच जाता है या फिर वो मर जाता है। इसलिए प्रयास करना आवश्यकता है, लेकिन इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्मणा देव नेत्रेणा, कि मृत्यु को तो भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। कोई भी डॉक्टर इस 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बोलेगा कि आप इसको वेंटिलेटर पे रख लीजिए तो बच जाएगा। सबसे पहले आपसे एक फॉर्म भराया जाता है जिसमें सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। इसलिए 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बताएगा ये बात। इसलिए ये सारी चीज़ें जो करती हैं डिपेंड करती हैं। डॉक्टर भगवान का स्वरूप है लेकिन भगवान नहीं है। अगर आप उसको भगवान का दर्जा देते तो आप उस पर एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करते हैं। तो आजकल इसी कारण से सारे डॉक्टर्स की जो एक तरह से कदर नहीं हो रही है। तो डॉक्टर अपना प्रयास कर सकते हैं लेकिन उनके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। जितनी मेडिकल साइंस है, जितनी नॉलेज ग्रहण करी है, उसके अनुसार वो प्रयास कर सकता है, लेकिन अंत में ये हाथ में किसके है? कर्म ना देव, भगवान के हाथ में ही है और भगवान के अलावा कोई बचा भी नहीं सकता। चौथा जो है यहाँ पे धीर व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि धीर व्यक्ति वही होता है जो सोल, सुपर सोल और इस मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज रखता है। लेकिन आज के संसार में हम देखेंगे 99.9% जो लोग हैं वो सब अधीर हो रखे हैं। हल्का सा प्रोवोकेशन होता है तो हर जगह मैसेज आने लग जाएंगे, वो हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दंगे होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, आप हल्का सा प्रोवोक कर दो, तैयार बैठे हैं वो लड़ने के लिए, क्योंकि सब के सब अधीर हैं। किसी के पास आत्मा का ना नॉलेज है ना परमात्मा की नॉलेज है, ये शरीर क्यों मिला है वो नहीं पता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं पता है। तो इस अभावता के कारण वो पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी पशु की तरह जीते हैं और क्योंकि वो इस जीवन में पशु की तरह जिए तो अगला जन्म उनको पशु का ही मिलता है। इसलिए ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तो हमें इसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करना चाहिए, हर क्षण का यूटिलाइज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि हम इस मनुष्य जीवन का प्रॉपर यूटिलाइज़ करें और अपना जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, जिस कारण से परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हरे कृष्ण। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज का जो भजन है वो कबीरदास जी का है और इस भजन में कबीरदास जी जीवन की जो तरह तरह की अवस्थाएं हैं उसके विषय में बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह व्यक्ति तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, तरह तरह की आयु में, और भगवान का जो श्री कृष्ण का जो नाम जप है, जो युग धर्म है इस जन्म का, उसको भूल जाता है। जैसे भगवद गीता के इस वर्ष में भी बताया गया है, कौमारम यौवनम जरा, ये शरीर हर क्षण बदल रहा है और हमें इस समय को समझना चाहिए कि समय की तीव्रता कितनी तेज है, कितनी तेज से चल रहा है काल, और उस काल चक्र की तीव्रता को भापते हुए हमें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। तो इसी भाव को लेते हुए ये भजन प्रस्तुत है। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे, तूने
कबहु न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातु ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश भयो, पर तूने कबहु न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातु ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। बरस की अब मति उपजी, 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो, लोभ बड़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातु ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। वृद्ध भयो तब आलस उपजे, वृद्ध भयो तब आलस उपजे, कफ नित कंठ रयो, कफ नित कंठ रयो। संगति कबहु ना कीनिर तूने, संगति कबहु ना कीनिर तूने, विरथा जन्म गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातु ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। संसार मत लब का लोभी, संसार मत लब का लोभी, झूठा ठाट रचो, झूठा ठाट रचो। कहत कबीर समझ मन मूरख, कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो जन्म तेरा, बातु ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कयो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.